class students, good evening to all of you. We are in the last topic of the chapter laws of motion, that is motion in a vertical circle. Now, till now we discussed always about uniform circular motion. We discussed rounding a level road, rounding a bank road, bending of a cyclist, on all those, that was uniform circular motion. But when we talk about a vertical circle, that is a non-uniform circular motion. Okay, this is the first difference. Try to understand. In uniform circular motion, at every point the velocity value is same. But when we deal with this topic, motion in a vertical circle, we will see that every point the velocity is changing. Okay, that's why it is called dynamics of non-uniform circular motion. Okay, that is motion in a vertical circle. So, what is this? We have a small mass which is tied to a string. एक स्ट्रिंग में एक मास लगा दिया गया है और उस स्ट्रिंग को फिर ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है वर्टिकल सर्कल में. ऐसे नहीं, ऐसे ये हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कल, उसको ऐसे घुमाया जा रहा है वर्टिकल सर्कल में. Okay, the string is rotating like this in a vertical circle like this. Okay, so that I written here. Consider a body of mass m tied to a string of length r. जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वही रेडियस ऑफ द सर्कल भी होगा. Rotating in a vertical circle non-uniformly, but at every point the velocity is 0. Okay, what is my job? Try to understand what is my job in this whole derivation. My job is to focus on three different points: lowest point L, middle point M, highest point H. In these three different points, I need to calculate two things at each point: tension at highest point, velocity at highest point, tension at middle point, velocity at middle point, tension at lowest point, velocity at lowest point. That means we need to calculate tension and velocity value at each points. This is my whole derivation aim. Okay, मेरा पूरा derivation में ये aim है, मुझे निकालना है tension और velocity value. And since now you are doing MCQs, so you don't have any derivations. So when we focus on MCQ question, you have to remember those tensions and velocity values. Instead of mugging up the whole derivation, mug up the tension and velocities values at each and every point, lowest, highest and middle point. Okay. अब इसको निकालने का बेसिक्स क्या है, कैसे करेंगे ना? First we will see, since the body is rotating in a circle, that means there is some force which is acting towards the center, and that force will act like a centripetal force. Okay, let's calculate that first. Okay, so what I'm doing to calculate the force, I'm taking any one point randomly. Let the mass is at this point, make at an angular position theta. When the angular position is theta of this mass, okay, the body is here. At this point, how many forces are acting on this body? One is in the string tension, and this weight mg. So out of these two forces, this force is acting towards the center, right? Is there any other force acting towards the center? No, mg is acting towards this direction. But क्या पता mg का कोई component act कर रहा होगा? So we need to very confirm, like, is there any other forces which is acting towards the center? So that's what I will do. I will resolve the mg and I will see, is there any force, any component of mg is acting towards the center? हाँ, अगर रिजॉल्व करने के बाद भी अगर पता चलता है कि कोई भी फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट नहीं कर रहा, then I will take that tension is equals to mv square by r. But पहले ही मैं ले नहीं सकता tension is equals to mv square by r. We have to resolve the other forces. We need to check, is there any other force which is acting towards the center or not. So for that, I am resolving the weight value mg. If this is theta, this is theta. These are parallel lines, corresponding angles. तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा mg cos theta और इधर आएगा mg sin theta. I hope you understand. This is mg sin theta. अब देखो, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, तो नेट फोर्स इस तरफ कितना होगा? T minus mg cos theta. That means T minus mg cos theta is equals to mv square by r. Okay, is equals to mv square by r. So this is the force which is acting towards the center, and that means this force is providing necessary centripetal force. Okay, only this is one equation you need to derive using the concept of figure. So let's start. Consider a body of mass m tied to a string of length r, rotating in a vertical circle non-uniformly. Let at any instant the mass is at angular position theta with velocity v. At that point the velocity is v. At this instant, t minus mg cos theta is equals to mv square by r. At this point the velocity value mv square by r. मैंने क्या बोला, मुझे क्या निकालना है? टेंशन का वैल्यू निकालना है, वेलोसिटीज का वैल्यू निकालना है. ओके, सो
from there I got the tension expression mg square by r plus mg cos theta. Now see, in this tension expression we have velocities which will change from point to point. We have theta which will change from point to point. यहाँ पे है theta, ये धीरे धीरे theta change होगा ना, theta will change, theta will increase. So when the mass is at lowest point, theta is 0. When the mass is at middle point, theta is 90. When the mass is at highest point, theta is 180 degree. So theta at every point is changing, as well as the velocity at every point is changing. Clear? You understand? So what are that are written here? Now T on string, the tension on string depends on the position of the mass. I can see, because it depends on theta. Depends on the position of mass, that is, it depends on theta. So you have to remember this basics, क्योंकि यहीं से बाकी सब चीज आएगा. ओके, तो मुझे पता चल गया कि टेंशन थीटा पे डिपेंड करता है. अब मैं देखूंगा कि थीटा मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है. तो टेंशन कॉस थीटा पे डिपेंड करता है. तो जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो टेंशन भी मैक्सिमम होगा. कॉस थीटा का वैल्यू जो मिनिमम होगा, टेंशन भी मिनिमम होगा. अब कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम कितना होता है? सो दैट आई रिटन हियर, टेंशन इज मिनिमम व्हेन कॉस थीटा इज मिनिमम. कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, दैट इज cos 180. दैट मींस थीटा 180 के केस में टेंशन मिनिमम होगा. तो थीटा 180 कब होगा? जब मास हाईएस्ट पॉइंट पे होगा. सो टेंशन इज मिनिमम for theta equals 180, tension is minimum. That means this implies theta 180 मतलब क्या? Highest point. Therefore at highest point h, ph, that is tension and h is equals to tension minimum. That means the highest point tension is minimum. यहाँ से मुझे इतना पता चल गया कि tension minimum कब होगा? Highest point में होगा. Similarly जब cos theta maximum होगा, मतलब +1. cos theta maximum कब होगा? +1 में होगा. +1 कब होता है? cos 0. That means जब थीटा 0 होगा तब टेंशन मैक्सिमम होगा. थीटा 0 कब होगा? लोएस्ट पॉइंट. तो टेंशन मैक्सिमम कब होगा? जब लोएस्ट पॉइंट होगा. ओके, अब द कोर ऑफ दिस होल डेरिवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन. द कोर ऑफ दिस डेरिवेशन, दिस इज द कोर ऑफ द डेरिवेशन. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड नाइसली. ओके, दिस इज अ फैक्ट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. बाकी सब कुछ तो ओके है, वी अंडरस्टैंड. मैंने एक वर्टिकल सर्कल लिया, मैंने एक बॉडी लिया, एक एनी एंगुलर पोजीशन थीटा. वी अंडरस्टैंड one force is tension acting here, one force mg cos theta acting here. Therefore the net force towards the center is T minus mg cos theta, and that is providing centripetal force. From there we got the tension expression. From the tension expression we understand the tension expression depending on cos theta. Okay, तो cos theta is minimum कब है? जब वो हाईएस्ट पॉइंट में है. मैक्सिमम कब है? जब वो लोएस्ट पॉइंट में है. कहां से पता चला? cos theta का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से पता चला. cos theta का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है तो थीटा 0 होगा. cos theta का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, थीटा 180 होगा. तो मिनिमम टेंशन कब आ रहा है? जब cos theta मिनिमम हो रहा है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट में मिनिमम टेंशन हो रहा है. अब ये जो मिनिमम टेंशन का वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए, दैट इज अ फैक्ट. ठीक है ना? अब मैंने जब तुम्हें टेंशन के अंदर पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था? इफ द स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड देन देयर इज सम टेंशन वैल्यू, बट इफ द स्ट्रिंग इज फ्लैट then the tension value becomes 0. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. जब ये रस्सी ऐसे करके घूमेगा, घूमते 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 जब ऊपर चला जाएगा, at this point, अगर इस रस्सी में स्लैक आ रही है, will it cross this point? No, it will fall down directly. ना? That means इस मास को पूरा अगर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो इस जगह में टेंशन 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए. क्लियर? इतना समझ में आ गया? दैट मींस हाईएस्ट पॉइंट में जो टेंशन का वैल्यू होगा वो 0 से ज्यादा होना चाहिए. अगर 0 हुआ तो स्लैक हो जाएगा, स्लैक हो गया तो नीचे गिर जाएगा. क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके, अब नेक्स्ट केस. तो मुझे पता चल गया कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन 0. टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन 0. अगर टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, सो व्हाट विल हैपन? स्लैक हो जाएगा एंड द mass will not complete the circle. Okay, the body will not complete the circle. It will fall down from the highest point. Okay, but ऐसा कब होगा? जब वो बॉडी को मैं यहां से लाके यहां पे छोड़ दूं, ऐसे करके छोड़ दूं, तब जाके स्लैग आएगा. बट द बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कैरी करेगा. When the body is already in motion, due to inertia ये आगे चला जाएगा. ओके, वो डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा. इसका मतलब व्हाट इज हैपनिंग इज दैट टेंशन या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल्स टू होना चाहिए. अगर इक्वल्स टू 0 हुआ तब भी वो कंप्लीट कर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया.
अंडरस्टैंड? ड्यू टू इनर्शिया। द एक्चुअल थ्योरी से कि ये जो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो होने से स्लैक आ जाएगा, स्लैक ऐसे नीचे आ जाएगा। लेकिन सिंस द बॉडी इज इन मोशन ऑलरेडी, ओके, सो जीरो पे हुआ तो ड्यू टू इनर्शिया इट विल गो टू अदर साइड एंड अगेन स्लैक जीरो हो जाएगा, स्लैक गायब हो जाएगा, इट विल स्ट्रेच। सो एट दिस पॉइंट व्हाट हैपेंस ना, एट दिस पॉइंट दैट द स्ट्रिंग टेंशन बिकम्स जीरो, okay, but due to inertia it goes forward and again the tension present in the string. Okay, so normal theory say the tension at highest point should be greater than zero, it cannot be zero, okay, but since the body is in motion, so if it is zero then also it will complete the loop. तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है for completing the circle, that is looping the loop, इस वर्ड को याद रखना है, looping the loop, the tension at highest point that is equal to tension at minimum point, that is equal to tension minimum. तो ये मत याद करो, tension at highest point, जो highest point का जो tension होगा should be greater than equal to zero. highest point का tension को मैं tension minimum बोलता हूँ ना, okay, should be greater than equal to zero. बस इतना तुम्हें समझना है, बाकी सब substitution है क्लास, it's not a big issue. So इतना समझ में आया कि नहीं, ये सोचो पहले, हाँ. So again I am repeating, what is my job in a vertical circle? In a vertical circle, my job is to check out the tension and velocities values at three different points: lowest point, highest point, and middle point. For that, what I am doing? First, I am taking the mass at any instant at any angular position. Okay, in that angular position, we are checking out what are the net force acting towards the center of the circle. We understand the net force is acting is T minus mg cos theta. Of course, this is the net force acting towards the center of the circle. That means this is the force which is provides centripetal force. From there we get the tension expression. Now we understand from this expression that tension depends on cos theta. तो वहां से पता चला कि cos theta maximum कब है, जब +1 होता है, वहां से theta 0 आ रहा है, that means tension का वैल्यू maximum at lowest point है. cos theta minimum कब है, जब -1 होता है, that means theta 180, that means tension minimum कब है, highest point में. अब उसके बाद हम एक फैक्ट यूज कर रहे हैं. फैक्ट क्या है कि इस हाईएस्ट पॉइंट में जो टेंशन का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल्स टू जीरो हुआ तो वो स्लैक कर जाएगा, इट विल फॉल डाउन. दैट मींस फॉर लूपिंग द लूप, फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज नथिंग बट टेंशन एट मिनिमम टेंशन should be greater than zero. But I am taking here equals to zero also. Why? Because since the body is already in motion, so due to inertia also it will fall, go to other side. So अगर जीरो भी हो जाता है तो दूसरे साइड चला जाएगा. तो क्या नहीं हो सकता? जो नहीं हो सकता वो है ये. Less than zero अगर हुआ, then it will not loop the loop. Loop the. So for looping the loop, tension at highest point should not be less than zero. अगर less than zero हुआ तो complete circle नहीं करेगा. अब क्या करेंगे? बस इसका वैल्यू डाल देंगे. टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? मास वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट होल स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos 180, because I am talking about highest point. So the highest point theta is 180 degree. Velocity is not v. Velocity is velocity at the highest point vh. Velocity v is at this point. Okay. From the calculate the vh value. Cos 180 is -1 डाल दिया, शिफ्ट किया इधर जाके mm कर दिया, तो vh is greater than equals to under root rg. तो तुम्हें ये वैल्यू याद करना है और ये वैल्यू याद करना है. ओके, ऑल द स्मॉल एस्टेरिस्क वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर. सो हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन का वैल्यू मिल गया, हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया, हो गया. अब और एक तुम्हें थ्योरी याद रखना है. तो ये लोएस्ट और मिडिल पॉइंट का कैसे निकालूंगा? टू वेज के निकालूंगा, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तुम्हें हाईएस्ट पॉइंट का स्टोरी मिल गया, अब तुम्हें कंजर्वेशन एनर्जी लगाओ, वहां से वेलोसिटी निकालो लोएस्ट पॉइंट का, वहां से वेलोसिटी निकालो मिडिल पॉइंट का, और फिर इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल दो, वहां से टेंशन आ जाएगा हाईएस्ट लोएस्ट और मिडिल पॉइंट का. सो देखो, तुम अगर डेरिवेशंस को ऐसे रखोगे ना तो याद नहीं रहेगा क्लास. यू हैव टू रिमेंबर व्हाट माय जॉब इज. माय जॉब इज टू फर्स्ट डिराइव द टेंशन एक्सप्रेशन, देन अप्लाई द मिनिमम टेंशन कंडीशन, apply the highest point tension condition, that the highest point the tension should be greater than equals to zero. From there you will get the velocity at highest point. Now your job is to apply conservation of energy, get the velocities at lowest point, and using the velocity of lowest point get the tension at lowest point. Again apply conservation of energy, get the velocity at middle point. Using the velocity at middle point, put it in this formula, get the tension at middle point. So देखो, मैं लगाया conservation of energy at lowest and highest point, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी मिल गया. अब तुम लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हो.
कंजर्वेशन एनर्जी। तो ये याद करना पड़ेगा। आफ्टर गेटिंग द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट एंड वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट यू हैव टू अप्लाई कंजर्वेशन एनर्जी टू गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी एल स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज वी एल प्लस 0, लोएस्ट पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, हाइट इसको मैं बेस लाइन पढ़ रहा हूँ, दिस इज द बेस लाइन फॉर मी, सो इसके रेस्पेक्ट में हाइट 0 है, बट एट हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज द हाइट, 2r, this is radius, height is 2r, so at highest point what is kinetic energy, half mv square plus potential energy mg, height h is 2r. okay, अब वैल्यू डाल दो, m will cancel out, vl square by 2 plus vh square by 2 plus 2gr. now substitute this vh value here. when you substitute this vh value here, this inequality will come thus. okay, since this vh value is not directly equals to under gr, so when you substitute this vh value here, ये equals to ये inequality बन जाएगा. so vl square by 2 greater than equals to this inequality is coming here because I'm substituting this value here, rg vh square rg by 2 plus 2gr. okay, now you multiply this 2 this side, rg plus 4gr, that is 5gr. so vl square is greater than equals to 5gr, that is vl equals to under root 5gr. okay, तो velocity at lowest point मिल गया. अब इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में डालो, from they get the tension at lowest point. so what is tension at lowest point? mass velocity at lowest point whole square by r plus mg. what is the theta value at lowest point? 0 degree cos 0. ये समझ में आया? ओके, ये देखने का जरूरत नहीं है, ये तो मैंने जस्ट बताया है कि टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज मैक्सिमम टेंशन. व्हाई? बिकॉज cos थीटा इज मैक्सिमम. तो तुम्हें तो ये सब याद करने की जरूरत है, तुम्हें तो वैल्यूज निकालना है ना. तो वैल्यूज निकालने के लिए डायरेक्टली गो टू द एक्सप्रेशन. यहाँ पे तो मैंने बताया है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या प्रूव किया, मैंने प्रूव किया कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू मिनिमम टेंशन. कैसे? बिकॉज cos थीटा इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट. cos थीटा इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट. व्हाई cos थीटा इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट? बिकॉज थीटा इज 180 डिग्री. वैसे एट लोएस्ट पॉइंट cos थीटा इज 1. व्हाई? बिकॉज थीटा इज 0. सिंस cos थीटा इज मैक्सिमम, दैट मींस एट लोएस्ट पॉइंट cos थीटा इज मैक्सिमम. दैट मींस लोएस्ट पॉइंट में जो टेंशन होगा वो मैक्सिमम होगा. But how to calculate that lowest point tension? Substitute in the formula. Mass velocity at lowest point whole square mg. What is the theta value at lowest point? 0 degree. Okay. Now again vl value जब डालोगे ये inequality आ जाएगा, m by r vl square is 5gr plus mg cos 0 is 1. From there you got tension at lowest point is greater than or equals to 6 mg. Okay. You understand class? So अब मेरे पास क्या बचा? I am interested now in middle point. So please ignore these things. ये सब चीज एक्स्ट्रा नॉलेज है, बस और कुछ नहीं है बेटा. These all are extra knowledge, nothing else. This part कि tension at lowest point is maximum tension, tension at highest point is minimum tension. Okay, तो ये भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज है एक्चुअली. This is just an extra knowledge. तुम्हें सिर्फ समझना है कि tension at highest point should be greater than or equals to 0. अब tension at highest point निकालने के लिए तरीका है mass velocity at highest point whole square by mg. highest point में theta is 180 degree. जब ये बॉडी यहाँ चला जाएगा theta 180 degree बन जाएगा. when this body will go like this, theta becomes 180 degree. this is just extra knowledge, so don't get confused by this and this case. similarly अब देखो, अब मुझे मिडिल पॉइंट में निकालना है, तो मिडिल पॉइंट में पहले वेलोसिटी निकालो. वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के. और टेंशन कैसे निकालते हैं? उस एक्सप्रेशन में डाल के. ओके, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, again apply conservation of energy. by conservation of energy at h or at l and m, lowest point और middle point में मैं conservation energy लगाऊंगा. तो kinetic energy at lowest point plus potential energy at lowest point, kinetic energy at middle point plus potential energy at middle point. kinetic energy at lowest point कितना हो जाएगा? half m vl square. potential energy at lowest point is 0. kinetic energy at middle point half m vm square. middle point का velocity plus potential energy middle point कितना होगा? mg. what is the distance of the middle point from the surface? r. height is r. mg h, h is r, so mg r. अब देखो m cancelling out. what do you got? vl square by 2 equals to vm square by 2 plus gr. I hope इतना समझ में आ गया होगा आपको क्लास. ओके, तो यहां से मुझे क्या निकालना है? vm स्क्वायर निकालना है.
तो Vm²/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, Vn²/2 माइनस GR। आई होप इतना समझ में आ गया। सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस VL वैल्यू हियर, व्हाट इज VL वैल्यू, तो ये इनइक्वालिटी आ जाएगा। तो Vm²/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Vn² कितना आएगा 5GR/2 माइनस GR। तो ये 2 इधर जाएगा तो कितना आएगा, Vm² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5GR माइनस 2GR, दैट इज Vm इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √3GR। तो Vm का वैल्यू मिल गया √3GR। ओके, सो यहाँ पे आया √GR, यहाँ पे आया √3GR, यहाँ पे आया √5GR। ओके, सो ऑलवेज वेलोसिटी निकालने के लिए वी गो फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टेंशन निकालने के लिए आफ्टर द फाइंडिंग द वेलोसिटी यू सब्स्टिट्यूट इन द टेंशन एक्सप्रेशन। नाउ हाउ टू गेट द टेंशन वैल्यू नाउ? So tension at middle point will be equals to what? Mass velocity at middle point whole square by r plus mg cos 90, because at middle point cos will be 90. So how much is cos 90? Cos 90 is 0. तो ये कितना आ जाएगा Vm² by r plus 0। अब टेंशन है मिडिल पॉइंट, Vm का वैल्यू डालो तो ये वाला इनइक्वालिटी आ जाएगा। सो m 3gr by r, so what is Tm greater than equals to 3mg। so तुम्हें फाइनली ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, okay, this value, these all asterisk values you have to remember। what is the tension at middle point, what is the tension at highest point? So finally what I got, tension at highest point greater than equals to 0, velocity at highest point greater than equals to √gr। okay, यहां से अब यहां पे क्या आया, tension at middle point should be greater than equals to 3mg and velocity at middle point greater than equals to √3gr, right? plus देखो अब यहाँ पे क्या है, इस लोएस्ट पॉइंट को यहाँ ला देते हैं, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना है, कहाँ है 6 mg and velocity at lowest point greater than equals to √5gr। तो ये तीन चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ओके, सो इफ आई चेक आउट द टेंशन वैल्यू 0, 3 mg, 5, 6 mg। okay, 0, 3 mg, 6 mg, and if I understand the velocity √gr, √3gr, √5gr, all the odd numbers 1, 3, 5। okay, और टेंशन क्या है 0 plus 3, 3 plus 3, 6। it's just teaching you a way of shortcut of remembering the datas। okay, I hope you understand what is going on in a vertical circle class। again I am saying after getting the tension expression, how we will get the tension expression? We will see what is the net force acting towards the center, that net force will be equals to centripetal force, from there we get the tension value। अब अगर टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट निकालना है तो अब थीटा कितना होगा 180 डिग्री। ओके, तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर देना, इस सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो रहे हो मत करो, छोड़ दो। ओके, हाईएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब मुझे याद रखना है कि जो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, वहां से वेलोसिटी निकालो। ओके, अब तुम्हें अलग से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेंशन मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, तो उसके लिए मैंने ये दो अलग अलग से पढ़ाया हुआ है सेपरेटली। टेंशन मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है +1, मतलब थीटा कितना होगा 0 डिग्री, मतलब लोएस्ट पॉइंट। टेंशन मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा मिनिमम होगा। cos थीटा मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, मतलब थीटा 180 डिग्री। थीटा 180 कब होगा, हाईएस्ट पॉइंट। ओके, now we will discuss some application based questions which you will face in numericals depending on vertical circle। okay, now see practical phenomena related to vertical circle। this ये topic तुम बुक से पढ़ोगे, I will discuss those things here but I will not make you write any notes here। okay, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहला तुम एक बाल्टी में पानी लो और बाल्टी को ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाओ, ठीक है, तो बाल्टी का जो पानी हो नीचे गिर जाएगा ना, तो कब नहीं गिरेगा और कब गिरेगा ये जानना जरूरी है, ठीक है ना, कब नहीं गिरेगा और कब गिरेगा, दैट यू नीड टू रिमेंबर नाइसली। तो ये वर्टिकल सर्कल में तो मुझे तीन चीज पता है, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, मिडिल पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट का कहानी पता है। हाईएस्ट पॉइंट में जो वेलोसिटी है वो √gr है, यहाँ पे √3gr है, यहाँ पे √5gr है। ओके, टेंशन का वैल्यू जो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 mg है, यहाँ पे 6 mg है।
सो टेंशन के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, यू हैव टू फोकस ऑन वेलोसिटी. वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू g r here, under 3 g r here, under 5 g r here. ओके, अब टू रोटेट इन अ वर्टिकल सर्कल सबसे पहले तुम्हें लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी चेक करना पड़ता है. क्या लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी अंडर 5 g r से बड़ा है या नहीं है. अगर है तो वो सर्कल करेगा, अगर नहीं है तो कुछ होगा, अलग कुछ होगा. क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो मैंने बाल्टी में पानी भर लिया, फॉर एग्जांपल पानी का जो वेट है वो mg है. ओके, उसको मैं वर्टिकल सर्कल में घुमाया. पहले बाल्टी यहां था, ऐसा करके बाल्टी है, बाल्टी का ये हैंडल है और बाल्टी में ऐसा करके पानी है. ठीक है ना. यहां पे जब मैंने स्टार्ट किया बाल्टी को घुमाना, अगर यहां का जो वेलोसिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 g r अगर हुआ, whatever radius I'm making it rotate, in any radius I can make it rotate like this. Okay, अगर यहाँ का वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 g r है तो ये जो बाल्टी जब ऊपर चला जाएगा ऐसे करके, तो तब भी इसके अंदर से कोई पानी नीचे नहीं गिरेगा. ओके, कोई पानी नहीं गिरेगा, क्योंकि तब जो भी mg वेट ऑफ द वाटर है ना, mg ये जो वेट ऑफ द वाटर है, जो mg नीचे लगेगा वो इक्वल्स टू यहां का सेंटीमीटर फोर्स के बराबर आ जाएगा, mvh²/r. क्योंकि एट लोएस्ट पॉइंट में ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ था बोल के. सो इफ आई स्टार्ट रोटेटिंग द बकेट फुल ऑफ वाटर with the lowest velocity greater than equals to under 5 g r, then at the highest point also no water will spill out, no water will come out. Why? Because the whole weight of the water will provide the centripetal force required at highest point. But if the velocity at the lowest point, okay, is less than under root 5 g r, then what will happen? ठीक है ना. तब क्या होगा. अब यहां पे एक केस है, इस केस में क्या होगा, क्या ये सर्कल घूमेगा, तो ये सर्कल घूमेगा, ये लूप द लूप होगा, लूपिंग द लूप पॉसिबल जब ये mg जो वेट होगा वो ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट हाईएस्ट पॉइंट हो. ओके, तो लूप तो करेगा, बकेट पूरा लूप तो करेगा आराम से. ओके, लेकिन कब लूप करेगा, though the lowest point condition null didn't satisfy, but if the total weight of the water inside the bucket is more than whatever the centripetal acceleration required at the highest point, then the bucket will it will complete the loop, but there will be some amount of water which will spill out. कुछ पानी गिर जाएगा. कितना पानी गिरेगा ये समझो. This you need to understand, कितना पानी गिरेगा. ठीक है ना. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. How much water will spill out, that you need to understand. और वाटर पानी कब गिरेगा, when the lowest point velocity is not satisfying this criteria, तब पानी गिरेगा, नहीं तो पानी नहीं गिरता है. These two things you need to understand. First, अगर बकेट फुल ऑफ वाटर में वर्टिकल सर्कल में घुमाओ तो द हाईएस्ट पॉइंट, क्या बकेट से पानी गिरेगा, कब गिरेगा और कब नहीं गिरेगा. कब नहीं गिरेगा, when lowest point में बकेट का वेलोसिटी अंडर 5 g r से बड़ा हो या इक्वल्स टू हो, तब पानी बकेट से पानी नहीं गिरेगा. लेकिन अगर कम हुआ तब बकेट से पानी गिरेगा ना. कितना गिरेगा, कितना गिरेगा, वो इतना गिरेगा, mg minus mvh²/r. This is amount of weight of water spill out. इतना पानी बाहर निकल जाएगा. कैसे, देखो वहां यहां पे इसको घूमने के लिए कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, mvh²/r चाहिए. ठीक है ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा. मान लो mg है 1000 न्यूटन और mvh²/r जो है वो है 800 न्यूटन. mg बड़ा है इससे. आउट ऑफ 1000 न्यूटन 800 न्यूटन used to provide centrifugal force, तो बाकी का 200 न्यूटन ऑफ वेट ऑफ वाटर कहां जाएगा, गिर जाएगा ना. सो टोटल वेट माइनस द अमाउंट ऑफ फोर्स, total force is mg which is acting towards the center, minus the amount of force which is required to provide centrifugal force. जो कि बचा हुआ जो वेट है, जो बचा हुआ जो पानी है, उसका जो वो पानी नीचे गिर जाएगा. बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस. अगर वेट ऑफ वाटर 1000 लीटर है तो आउट ऑफ 1000 लीटर मुझे सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स 800 न्यूटन का चाहिए. सो द 200 न्यूटन एक्स्ट्रा वेट हुआ पानी का, वो भी तो नीचे लग रहा है ना, तो वो कहां गया, वो नीचे गिर गया. क्योंकि आउट ऑफ
the total 1000 Newton which is acting downward, only 800 Newton was used for rotating the bucket. Just 200 Newton was an extra force. Okay, that water will fall down. Understand this? Now the next is, let me see how much time it is. The next example, practical example, is that we have seen a circus, or if you go to city center, science center, साइंस सेंटर में देखना एक एक्सपेरिमेंटल किट रखा हुआ है उसमें, जिसमें ना वायर्स दो ऐसे करके रॉड से ऐसा बहुत सारा अलग अलग सर्कल बनाया हुआ है ऐसे करके. ओके, सर्कल बना के, ओके, एंड देयर आर डिफरेंट हाइट्स. कभी तुम इतने हाइट से बॉल को फेंक दो, कभी इस हाइट से बॉल फेंक दो, कभी इस हाइट से बॉल फेंक दो, तो देखो तुम कितना सर्कल कंप्लीट करता है वो. दिस ऑल आर एक्चुअली वर्टिकल सर्कल कॉन्सेप्ट. ओके, अब ये मैं हाइट से बॉल को क्यों फेंकूंगा? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. हाइट से बॉल में क्यों फेंकूंगा? जब मैं इस बॉल को हाइट में लेके जाऊंगा, आई एम गिविंग सम पोटेंशियल एनर्जी टू द बॉल. तो जब मैं रिलीज किया, ऑल द पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, राइट? ओके, अब वो जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ तो उसमें कुछ वेलोसिटी आया. अगर वो वेलोसिटी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, √5gr, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी और इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो क्या वो घूमेगा इस वर्टिकल सर्कल में? नहीं घूमेगा. ये फंडा, ये कुछ काम करता है सर्कस में. जो बाइक नहीं होता है, बाइक वाले ऐसे आते हैं, फिर ऐसे करके गोल गोल घूमता है वर्टिकल सर्कल में, मौत का कुआं. ओके, वो क्यों होता है ऐसा पॉसिबल? बाइक वाला जब हाईएस्ट पॉइंट में जाता है तो बाइक वाला नीचे क्यों नहीं गिरता है? तो वो कितने हाइट से कूदेगा, कितने हाइट से बाइक वाला आएगा, ओके, कि वो इस सर्कल को कंप्लीट कर सके. ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे बनाते हैं? व्हेन द सर्कस दिस होल किट, व्हेन दे इंस्टॉल इन द ग्राउंड, they don't install just randomly at any height. No, it is all about calculation. It depends on what is the circle radius the bike need to rotate. Depending on that radius, that height is calculated, and then they place this height. Okay, so depending on this radius, ऐसा नहीं कि कितना भी हाइट में रख दूं और वो घूम जाएगा, वो ऐसा जरूरी नहीं है क्लास. So it depends on totally the सर्कल, किस सर्कल में घूमना है. फॉर एग्जाम्पल, बाइक छोड़ दो, मुझे मार्बल है यहाँ पे, और यहाँ पे इस मार्बल को इस हाइट से मैं रिलीज करूंगा, तो ये मार्बल ऐसे जाके क्या ये पूरा सर्कल घूमेगा कि आधा सर्कल घूम के वापस आ जाएगा? हाउ वी विल अंडरस्टैंड? तो ये मार्बल इस पूरे सर्कल को, वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए एट दिस पॉइंट इस मार्बल का वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5gr आना चाहिए. अगर मार्बल का वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट 5gr के बराबर ना हो, तब ये मार्बल पूरे सर्कल को घूमेगा ही नहीं. सो ये कैसे पता चलेगा? ओके, सो कितना हाइट से मैं मार्बल को रिलीज करूं सच दैट एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी बिकम्स √5gr. अंडरस्टैंड? सो लेट द मार्बल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h. So at this point, the marble has potential energy is mgh, right? When this marble is released, this whole potential energy is converted into kinetic energy at this point. Okay, इस पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी के बराबर कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहां से वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ रहा है? √2gh. तो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज √2gh, right? So when a body is released to a height from a height h, so at the lowest point, the body will acquire how much velocity? √2gh. But for looping the loop, this velocity should be minimum √5gr. Minimum √5gr आना चाहिए. मतलब ये velocity √2gh should be minimum 5gr के बराबर आना चाहिए. उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन minimum 5gr आना चाहिए. यहां से h का वैल्यू मिल जाएगा. 2gh equals to 5gr. GG कर दिया. तो व्हाट इज h? 5r/2. तो डिपेंड्स ऑन द रेडियस. मैंने कितना रेडियस बनाया, उसका 5/2 टाइम्स हाइट से मुझे इसको रिलीज करना पड़ेगा. अगर मैंने रेडियस 10 मीटर का बनाया है, ओके, फॉर एग्जाम्पल रेडियस 10 मीटर का सर्कल है, तो इस सर्कल में कोई बॉडी घूमेगा कि नहीं घूमेगा, उसके लिए मैं कितना हाइट से फेंकूं, तो इधर डालो. तो 5 × 10/2 हाउ मच? 25 मीटर हाइट से मुझे इस बॉडी को रिलीज करना पड़ेगा. जब मैं 25 मीटर हाइट से रिलीज करूंगा, देन वो 10 मीटर रेडियस का वर्टिकल सर्कल में घूमेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सर्कस वाले भी थोड़ा फिजिक्स पढ़ते हैं, थोड़ा ये कैलकुलेशंस करना पड़ता है इनको, अदरवाइज दे डोंट नो हाउ टू डू इट.
तो अगर ऐसा कोई बाइक वाला या मार्बल मुझे पता चल गया, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, और एग्जांपल लेते हैं, चलो थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ योर प्रैक्टिकल लाइफ। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू रोटेट इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर रेडियस में घूमना है। तो इस 20 मीटर रेडियस वर्टिकल सर्कल में घूमने के लिए वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट शुड बी इक्वल टू 105 g। एंड ये वेलोसिटी आएगा कहां से? हाइट से आएगा। तो हाइट से कितना वेलोसिटी आया? √2gh। इन दोनों को इक्वल किया, हाइट कितना है? √5r/2। सो फॉर r इक्वल्स टू 20 मीटर, हाउ मच हाइट शुड बी? 50 मीटर का हाइट होना चाहिए। बट कुछ गलती हो गया, मैंने क्या किया, ये हाइट 20 मीटर से फेंका, यहां से 20 मीटर से मार्बल को फेंका। सो विल इट रोटेट? नो, क्योंकि ये हाइट उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाइट 20 मीटर है, लेकिन हाइट कितना होना चाहिए? 50 मीटर होना चाहिए मिनिमम। हाँ, उससे ज्यादा हो सकता है, मिनिमम 50 मीटर होना चाहिए। हाँ, 50 मीटर से ज्यादा 80 मीटर में रखा तब होगा, 100 मीटर में रखा तब होगा, बट 50 से अगर कम रखा, क्योंकि ये कंडीशन मिनिमम कंडीशन लेके यूज किया ना मैंने, मिनिमम √5gr होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास व्हाट आई एम ट्राइंग टू say you. Okay, that's all for this is the end of the chapter laws of motion class. Thank you very much. Wait, I said end of the chapter, right? Yes, it is end of the chapter. Legal theory is ended, but we have to do lots of numericals. Okay, but since when we talk about numericals, as many numericals I will do, it is less for you, because the numerical which will come in examination we don't know. So you have to understand the concept of numericals instead of mugging up the numericals. Okay, so legally or illegally we can say the chapter is over, theory is over. Now we'll practice more and more numericals in the next videos. Okay, now the video is over. Thank you very much.